आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yeah, screen is visible, but yeah, screen is now visible, audio but is your voice, visible? हाँ, आपका वॉइस नहीं आ अभी आ रहा रहा है। है? yes, अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। Yeah. Okay. So let's go to the first point, how to track my screener. You see, I have sent a momentum stock list in Google Drive in the group. You just click to that this link. It will open a new sheet where you can see there are 3 sheets: call generated, script list, and potential scripts to be added in the market watch. These 3 script sheets can be observed in that Excel. So we have to understand how to open the Excel, because I have not shared the screen. I have sent it to a link where everyone can watch it without permission. So this is the first thing. You have to download this. You can open this Excel in your PC. First thing. Now I will come how it is working. See, I have selected all the scripts which are there in the Nifty 200, and from there, Mr. Pradeep ji had sent a list where liquid F&O stocks with 5 numbers. I have selected only 5 number stocks. I have not selected any other stock then, other than that. Now here, using some calculations, we have derived at some values which is in positive and negative. It can be any positive or negative. If the script is in negative, you should not take it for trading. There will be no momentum in that stock. So avoid the stocks which are in the negative. First case. Second thing, you have to see whatever value is there in the current value, it should be greater than the previous day value if momentum is to be achieved. If the value माइनस का क्या है? माइनस का क्या मतलब है? -3.20 और -2.76 का क्या मतलब, क्या लॉजिक है? मोमेंटम नहीं आएगा सर उसके अंदर। खूब दवा की 2-3 हजार की दवाई मिल जाएंगी, खूब सूंघ जाएंगी। सर्दी में खूब पालक गाजर चलती है, गाजर पालक चुकंदर ले आता हूँ। हेलो, हाँ बोलिए, मैंने म्यूट कर दिया। नेगेटिव अगर रहेगा हाँ तो आपको मोमेंटम नहीं आएगा। नहीं, -3.2 से -2.76 हुआ, इसका क्या मतलब है? तो बढ़ गया है, मोमेंटम की तरफ आ रहा है, आया नहीं है अभी। ओके। ये अभी 0, करंट वैल्यू आपको 0 के ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, से फॉर एग्जांपल एबी कैपिटल 6.46 9.15, मतलब ये तो बढ़ गया, ये तो हो चुका है, मोमेंटम आ चुका है इसके अंदर, इसमें ज्यादा देख के फायदा नहीं अभी। अच्छा, 0 से ऊपर चला गया है। आपको वो स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं जो 0 के नजदीक है। अच्छा। और वही चीज हमने आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखेंगे 12 तारीख को एनसीसी, लुपिन, वोल्टास, इंडिया होटल, आईईएक्स, ईशर मोटर, अपोलो टायर, इसको आइडेंटिफाई हमने किया है कि ये मंडे के दिन मोमेंटम आएगा इसमें। अच्छा, और इसके बाद में जो स्क्रिप्ट 0 से नजदीक है, जैसे अभी बर्जर पे -5 से 0.25 आया, इसमें अभी मंडे ट्यूसडे में इसमें मोमेंटम आ सकता है क्योंकि ये 0 के नजदीक आ गया है। अच्छा, ये 0 के नजदीक आ रहा है। This 12th ka whatever scripts you had shown, no, that IEX which have come to momentum list. So there the value is positive. Yeah, it is just above 1. Above 1, just above 1, you immediately shift it to calls generated. Yeah, okay. It should be positive. That is the main criteria. From negative to it has to come to positive. Okay. Now, if you see certain things, you can understand what is the benefit. See, if you look into this, ABFRL. Sir, one basic question before you proceed. What is the momentum? Momentum, what we understand is that RSI only. Is there anything else you think of momentum? Momentum means what? I am saying that I have made certain calculations wherein if the stock is below 0%, 0 value, momentum will not be there. And the moment it crosses 0, you will get a very good momentum. 10%, 20%, 30%. It is not RSI, it is not ADS. So is it, can we consider that momentum is nothing but uptrend? Yeah, it is an uptrend. Okay. That is what I said. See, there are one more criteria. Sometimes this your SMA will be lower than this. Then it will say ignore that stock. It should be about the SMA also. About 20 SMA also for the momentum to sustain.
So actually this script list, why I added this list is that some people ask, what is the percentage as of now? So if you see in all cargo, from 307 it went to 374. Okay. From 0, it has reached to 58 and 63. So Okay. sales which are having very high value, don't sell as for trading. वन क्वेश्चन पितामह जी, अगर आपका ये माइनस से प्लस आ रहा है, जैसे 0 से अबव हो रहा है, तो हम जो मोमेंटम करेंगे, बात करेंगे, वो पॉजिटिव के लिए करेंगे, मतलब बाई करने के लिए Positive it is only for buying. सोचेंगे। It is only for buying, no selling. बाई। It is only for buying. तो जब शॉर्ट की बात ओके, जो जब शॉर्ट की बात हम करेंगे, जब मार्केट फॉल होगा या कुछ होगा तो शॉर्ट की बात करेंगे, तो 0 से जब माइनस की तरफ जाएगा तो तभी शॉर्ट की बात शॉर्ट करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है ना, नीचे जाने का गारंटी ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन ऊपर जाने का गारंटी बहुत अच्छा है। अभी आपका अदानी एंटरप्राइजेज बहुत अच्छा लग रहा है हिसाब से। अदानी एंटरप्राइजेज 0.56 to 4.13, दिस लुक्स वेरी गुड। इसमें सर मोमेंटम आ चुका है ना सर, अगर आप ये देखोगे इसी में अडानी एंटरप्राइज का आपका इसमें आया था ना 11 तारीख को। अच्छा, ये 3.58 का तो मोमेंटम वहां पे कलम डाल दीजिए कि मोमेंटम फॉर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, क्योंकि मोमेंटम दोनों साइड का होता है, पॉजिटिव के लिए भी होता है, नेगेटिव के लिए भी होता है। तो ये ओनली फॉर पॉजिटिव है। डाल दीजिए, एवरीबॉडी दिस इज ओनली फॉर पॉजिटिव ट्रेड। हाँ, तो थोड़ा नोट्स करके डाल दो पिताम्बर जी, थोड़ा नोट्स बना के डाल दो कि उसमें सो दे कैन रीड की मतलब क्या इंडिकेशन है, क्या मतलब है उसका। ठीक है, क्योंकि सर इसमें क्या देखिए, कॉल जनरेशन में मैंने क्या दिया है, बाइंग प्राइस एलटीपी दिया है, बेसिकली मैंने ये इसीलिए दिया फॉर बाइंग स्टॉक। मैंने अब गूगल में अपना व्हाट्सएप में भी डाला था, मैंने लिखा है फॉर पोटेंशियल बाइंग लिखा हुआ है स्पेसिफिक। ओके, तो सर इसमें इसीलिए बनाया है ताकि आपको कॉल देने के बाद कितने हाई गया, कितना नीचे गया, ये सब आपको एक्सेल शीट से पता चलेगा। 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद भी आप देख सकते हो इसको। ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो मोमेंटम में जैसे 0 से 0 वैल्यू आ जाए या पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो दैट इज द राइट टाइम फॉर एंट्री ऑफ दैट स्टॉक, और वी शुड अबाउट 20 SMA, प्रोवाइडेड इट इज अबाउट 20 SMA। ओके। अगर 20 SMA से नीचे है तो ये देखो यहाँ पे इग्नोर लिख रहा है। यस सर। अच्छा, but actually Mr. Pete is screening that also, whether it is above 20 SMA and then bringing it to that sheet called the calls generated. So if I look at the calls generated sheet, I don't need to go to the other sheets. Am I right? Yeah. See, why I'm specifying this is that suppose some person is holding some stock. He's holding all cargo. That's the point. Now assume that I have got many momentum, I should exit from this stock because it is at 58 and 63. Okay. So exit also you can plan according to figures. This current value you are showing here, it will keep changing during the market hours. कोठारी सर, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, कुछ म्यूट करने का होगा शायद। म्यूट करने का है, लेकिन 3-4 लोग ही अनम्यूट है अभी। क्या इनका आवाज ही नहीं आ रहा, क्या हो गया पिताम्बर जी का? आपका आवाज नहीं आ रहा पिताम्बरम जी? पिताम्बरम जी, there is no voice. पिताम्बर जी तो शायद वो आ रहे हो, शायद ज्वाइन करेंगे। मोबाइल पे फोन करो ना सर। मे बी एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, बट उनको आवाज जाना चाहिए ना। हाँ राइट। नहीं, बट इन्होंने कैसे निकाला ये वैल्यूज, किसी को आइडिया है? जो इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट लिस्ट बनाया ना, स्क्रिप्ट लिस्ट में जो इन्होंने डेटा दिया। I also asked the same question to him that how this momentum value is picked up.
हाँ, So, but he didn't answer that. Probably since he is handling algo and all, they normally keep their strategies, to their confidential manner. सर एक But डिफरेंट सी वॉइस आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। Derive these values from the standard deviation concept that he has explained. No, it is not depending on the standard deviation, sir. It's a different calculation altogether. I will not be disclosing that calculation, but you can see the values there. But it depends on the factors. You can tell us, sir, what are the factors the momentum depends on? One is the price rise, rate of change, price rise or price fall. See, I am taking 46 days data and then analyzing the movement of the stock. Okay. That calculation I cannot disclose. अच्छा पीताम्बर जी, you were आपका आवाज नहीं आ रहा था for last 5 minutes. So can you start from the 5 minutes earlier? Yeah. See, there are 3 sheets over here. One sheet is for the call generated. Okay. That will be displayed every day. New calls will be added. And the second sheet is for the scripts that are expected to come into this list. जो फ्यूचर में ये स्क्रिप्ट आ सकते हैं अपने, क्योंकि इसके वैल्यू सब 0 के नजदीक आ गए हैं। और तीसरा जो स्क्रिप्ट है, जो लिस्ट है, वो आपका ओवरऑल सब स्क्रिप्ट्स के डिटेल है, जिसके वैल्यूज क्या है, करंट वैल्यू एंड प्रीवियस डेज वैल्यू। So this sheet you will be updating every day? Yeah. Okay. Updating only call generated will be updating every day. The rest is auto updated. So we have to see in the evening after the market hours. Yeah, not after the market hours, morning. अच्छा, morning में we have to see every day in the morning. Google Sheet का जो डाटा है वो रात को 12 बजे के बाद आता है, आज का डाटा। अच्छा, clear. तो वो डाटा actually चाहिए अपने को। This script list में this current value you are mentioning, of the momentum. So that changes during the market hours, because you said it's online. No, it is after closing hours. After previous day closing, okay. Yeah. नहीं, after closing hours for the current day. LTP change होगा online का, right? Hello. No, my question was during the market hours, suppose some values will not change, sir. Only LTP will change. But value also will change, no? Yeah, value will remain same for the whole day. Whole day, yes, right. But in true sense, it will change, but you are not changing. That's what you are telling. No, sir, it will not change, sir, actually, because this is taking at the end of the day data. Okay. So yesterday's data is clear. Now today's data, it will only get refreshed after the market hour, no, sir? Fine, but my question was that, suppose Q2 comes during the day and the script falls 5%, then, will we come to know that, the momentum it has lost? Sir, the market is coming down, the momentum, it is losing momentum. That is clear, no, sir? Okay. It's very clear. If the market is coming down, a stock in uptrend has to move up, not come down. It can come down a little, but it should not come down 5%. Okay. If it comes down 5%, then definitely the momentum is losing. It is losing its momentum. Okay. Pitambar sir, based upon the number of scripts generated, like if you have been watching it for, let's say, 1 or 2 weeks, No, sir. It is only, I have started on 11th. Yeah, okay. Based upon 11, what is your experience? I mean, see, value can come above 0 and then can go down also. The momentum can fade down. So what is the success ratio? It will be around 60-40, sir. Okay. What is 60-40? 60-40 means? 60-40 up, 60 perfect, 40 loss. Acha. So you can't further improve it to maybe 80-20? Yeah, if you are taking a hedge, then there is no issues at all, sir. Acha. If you are taking an equity, then you need to keep a stop loss at your level. तो एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो पीताम्बर जी ने दिया है मोमेंटम, वो बहुत सही बात है, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि अगर 5 मोमेंटम स्टॉक मिल गया तो मुझे 5 ही स्टॉक में ट्रेड करना बहुत जरूरी नहीं है। आपको वहां पे चार्ट में देखना है, अगर विदिन 5 स्टॉक से अगर आपको 2 स्टॉक्स कंफर्टेबल लग रहा है कि इसमें ब्रेकआउट हो रहा है या आपको कुछ लग रहा है, तो ओनली 2 स्टॉक में ट्रेड कीजिए। जरूरी नहीं कि 5 ही स्टॉक में आपको ट्रेड करना जरूरी है।
ये है। तो मोमेंटम मतलब आपको 30 to 40 से 5 स्टॉक मिल गया, तो विदिन 5 स्टॉक से आपको आपके हिसाब से आपका चार्ट पैटर्न आपका या 20 SMA फॉलो करे या 200 SMA फॉलो करे या ट्रेंड लाइन फॉलो करे या कोई पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे जाइए और आपको जो कंफर्टेबल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो उसमें जाइए। ये जरूरी नहीं है कि उसमें 5 स्टॉक में जो ट्रेड करना ही करना है। क्या पीताम्बर जी मैं सही बोल रहा हूँ या? सर आई एम ओनली ट्राइंग टू फिल्टर सम स्टॉक सर। अब 200 स्टॉक से 10 आ गया, मेरे को 10 ही स्टॉक पे अटेंशन देना है। स्कैनर है, 10 के बाद इसको आज 5 आ गया, स्कैनर की तरह 5 पे अटेंड करना है। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक फिल्टर हो जाता है। वहां से बाद में आपका जो स्ट्रेटेजी रहेगा, चार्ट देखने का जो तरीका रहेगा, उसको अडॉप्ट करके आप इसको और फाइन ट्यून कर सकते हैं। और ये जो प्रीवियस डे करंट वैल्यू जो डाटा है, ये यूडी डाटा है, और यूडी डाटा ज्यादा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इंट्राडे में जो कभी बहुत बार ऐसे थे कि टाटा मोटर्स 10% ऑफ हो गया और क्लोजिंग होते होते 1%, हमें क्या लगा ट्रेडिंग आवर में, यार मोमेंटम तो आ रहा है टाटा मोटर्स, चलो बाय करो, पता चला कि वो 10% पूरा गायब हो गया। तो यूडी जो डाटा होता है हमेशा यूजफुल होता है कि हाँ उसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। हम ना ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इंट्राडे, सो इंट्राडे को भूल जाइए इंट्राडे। तो आज कितना हो रहा है, हमें थिंक अबाउट डिलीवरी मींस कि BTST 15 डेज 1 मंथ, उस हिसाब से देखिए। अच्छा, इसमें देखिए आपका देखिए कल के लिए सिर्फ 6 स्टॉक्स है। आप उस 6 स्टॉक का तो चार्ट खोल के देख सकते हैं ना सर, कौन सा मुझे लेने लायक है। आपको 150-200 स्टॉक में से 6 स्टॉक आइडेंटिफाई करके दिया है, फिल्टर करके दिया है, उसको आप चार्ट में खोल के देखिए आपके सिस्टम में क्या बैठ रहा है। Pitamaran ji, see, you are saying you have to select stock which is near 0 or 1, right? Yeah. Similarly, some stocks, for example, Algorithm, you are showing 63. It is very high, right? That means the stock will come down in near future. See, if you are in profits, you should book your profits at least 50%. Okay. Because the momentum can continue. You cannot be sure till what level it will go. Sir, could you please guide on the ranges where we can start booking the profit? Say 25, 50, 63, whatever. See, there is one more Excel where it will give you the support and resistance also. So using this this values, you can go over there. Is there any question regarding these 3 sheets? इसी में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी में डाल दीजिए ना, तो इसी वाली लिस्ट में। सर ये वो पुल अप कर रहा है किसी और जगह से सर। अच्छा। अभी मैं क्या काफी अभी यार इसमें भी मैंने ये लगा था मुझे कि मैं अगर इसको ऐसे शेयर करता हूं कि किसी को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा मेरा परमिशन का, तो सब आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर वहां पे मैंने 2 शीट डाला तो पब्लिक बोल रहे हैं हमको दिखना ही है उसमें। फिर मेरे को वापस नया लिंक बना के भेजना पड़ा, क्योंकि मैं अगर शीट ऐड करता हूं तो शेयर नहीं होता है, जो मैंने पहले शेयर किया उतना ही जाता है। अच्छा सर, थैंक यू, ये तो बहुत परफेक्ट है, नो डाउट, दिस इज परफेक्ट। तो पीताम्बर जी बेसिकली कंक्लूजन हमने ये लिया है कि एवरीडे मॉर्निंग में हमको ये शीट खोल के देखना है, और उसमें से जो आपकी कॉल जनरेटेड हुई है उसमें से वी हैव टू सेलेक्ट आवर स्क्रिप्ट्स, दैट्स ऑल। या परफेक्ट, ठीक है ना। और उसमें से भी चार्ट देख के देख लेंगे कि हमको कौन से स्क्रिप्ट में काम करना है। बराबर, क्योंकि बेसिकली हम तो सब जो है बुल है, वी आर नॉट बेसिकली बियर्स। नहीं, ये साइकोलॉजी है। रिटेल ऑलवेज पहले बाई करता है, रिटेल ऑलवेज बाई फर्स्ट एंड देन सेल। तो हम तो सारे जो है वो बुल वाले उस पे काम करते हैं, तो दैट मींस कि वी कैन सेलेक्ट दिस मोमेंटम स्क्रिप्ट एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। दैट्स वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड। या करेक्ट सर, हम तो फ्यूचर में डील कर रहे हैं, तो वी आर इन अप ट्रेंड, वी आर लुकिंग फॉर बेसिकली हमको 0 to 1 वाला सेलेक्ट करना है, करेक्ट ना? या मतलब प्रीवियस डे से करंट में जो इंप्रूवमेंट है वो 0। हाँ, मतलब प्रीवियस में -2 था, आज 1 आ गया, तो दैट इज गुड फॉर सिलेक्शन, बिकॉज माइनस से वो प्लस की तरफ आ रहा है। वेरी गुड, तो उसमें मोमेंटम आएगा। ओके। सर साथ में ये देखना होगा कि 20 SMA से ऊपर होना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली कर लिया ना इन्होंने, वो तो इन्होंने ऑटोमेटिकली कर लिया। मैं जब स्क्रिप्ट लिखता हूं ना, तो जो 20 SMA के ऊपर है वही लिखूंगा। हाँ। आपको सिर्फ ये पोटेंशियल स्क्रिप्ट जो आने की तैयारी में है उसमें मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं कि कल निफ्टी आ सकता है। अगर ये
-2.76 से 1 पे आ जाता है, पॉजिटिव में आता है, तो ये अप ट्रेंड में आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये इग्नोर लिखा है, क्योंकि उसका एसएमए बहुत ऊपर है, तो आपको उसको फिर लेना नहीं चाहिए, एसएमए के भी ऊपर होना चाहिए ट्रेडेड प्राइस। इसमें काफी स्क्रिप्ट्स को इग्नोर किया है मैंने। सर इसमें आपने आईजीएल जो लिखा है, इसका क्या प्रोस्पेक्ट है सर? ये अभी कल पॉजिटिव में आएगा तो ऊपर जाएगा सर 100%। ओके, अच्छा कल हमें देखना है, राइट। क्योंकि ये अभी पॉजिटिव में आया तो मैं लिख नहीं सकता हूं आज के लिए, लेकिन आप उस अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। यस आई हैव 1 लॉट फॉर दिस। तो आपको उसके लिए ट्रैक कर सकते हैं, आजकल इसमें मोमेंटम आ सकता है। राइट सर, थैंक यू वेरी गुड। 20 एसएमए सर ने जो लिया है, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं आपको कि 20 जो पीरियड होता है हमारा 1 मंथ में ट्रेडिंग डेज होता है, तो इसका मतलब है वो स्टॉक 1 मंथ 20 एसएमए मतलब 1 मंथ का एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। सो चांसेस है कि वहां पे हमें एक बहुत बड़ी जो तेजी मिले। अगर वो 20 एसएमए के नीचे ट्रेड हो रहा था, अब अचानक 20 एसएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो थिंक अबाउट द बुल, और ऊपर से वो मोमेंटम आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग 20 एसएमए को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और आईजीएल में क्यों? आईजीएल का केस देखें तो आईजीएल का 20 एसएमए 486 और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 497, सो दैट मींस इट इज जस्ट अबाउट टू ब्रेक आउट, गिव मोमेंटम, या मोमेंटम आने वाला, राइट। ये मंडे के दिन आपको लिस्ट में आ जाएगा ट्यूसडे के लिए, ओके, बिकॉज आई नीड कंफर्मेशन 1 के ऊपर गया तभी मैं उधर दूंगा, 0 के ऊपर गया कंफर्म होना चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, आज ना आने का कारण है उतना छोटा पॉइंट के लिए वो रुका हुआ है। अच्छा एचडीएफसी लाइफ में भी आपका फ्राइडे को काफी ज्यादा मूव आया था, तो एचडीएफसी लाइफ इसमें क्यों नहीं आया? सर एचडीएफसी लाइफ आपका कॉल देखिए जनरेटेड में है, ऑलरेडी कॉल जनरेटेड में है। एचडीएफसी लाइफ आपका कॉल जनरेटेड में आएगा, है सर, मैंने देखा अभी। कहां एचडीएफसी? ये देखिए नंबर 14 यस, हाँ ये आ चुका है। अच्छा 701 के ऊपर बाइंग बताया था, 722 का हाई मारा है और अभी 720 का क्लोजिंग है। हाँ, राइट। तो ये भी मोमेंटम स्क्रिप्ट में आ गया था। अब कॉल जनरेटेड है क्या? देखिए कॉल जनरेटेड वाले में, कॉल जनरेटेड में ये है ना ये सर। अच्छा कॉल जनरेटेड 11 तारीख को कॉल जनरेटर में आया था। हाँ Reliance is missing, Pete, Mr. Pete. It is very रिलायंस अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्रिप्ट लिस्ट में जाएंगे, रिलायंस का पॉसिबिलिटी है कि नहीं देखने के लिए रिलायंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका -10.86 9.40 है। इसको मोमेंटम में आने में बहुत टाइम है। अब ये 10 तक आने में इसमें वक्त लगेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बनाया आपने, ये बहुत अच्छा बनाया है ये तो सर, बहुत ही कमाल है। डायरेक्शन, वेरी गुड। एक्चुअली सर डायरेक्शन हाँ, अभी इसमें क्या है, जैसे उस दिन कोठारी जी भी बोल रहे थे कि ईएमए का किसी को रिक्वायरमेंट है, ईएमए के बेस पे, उसमें भी मैं काम कर रहा हूँ, 1 हफ्ता लगेगा उसको भी कंप्लीट करने में। अच्छा पीताम्बर जी, हाँ सर ये शीट डेली हमें कहाँ से मिलेगी? ये डेली शीट हमें कहाँ से? मैडम मैंने आपको ये लिंक शेयर किया है, ये देखिए इधर मोमेंटम स्टॉक लिस्ट, इसको सिर्फ क्लिक करना है मैम। ओके सर, ये एक्सपर्ट ग्रुप में है। ये मीनू जी का प्रॉब्लम ये है, मीनू जी का प्रॉब्लम ये है कि 7 दिन में एक दिन ये व्हाट्सएप देखती है और फिर बोलती है मुझे ये फाइल भेजो, वो फाइल भेजो वो फाइल मुझे नहीं मिला है। इतने में से कुछ मिस हो जाता है सर। हाँ तो आप प्रॉब्लम ये है कि रोज नहीं देखते हैं आप। काल ही तो भेजा है विधानमंत्री जी, काल ही भेजा है तो भाई। अच्छा ठीक है मैम, अरे हम लोग तो दिन में 50 बार देखते हैं ये व्हाट्सएप ग्रुप हमारा एक्सपर्ट वाला। अच्छा मिस्टर पीट, I know if you एक्सपर्ट 1 वाले ग्रुप पे भी भेज दीजिए प्लीज। 100 बार 100 बार मैं 100 बार का अगर निकाले तो यार 100 बार का निकाले तो 1 घंटे में कितनी बार देख रहे हैं आप? 10 बार है। सर इस लिंक को प्लीज अगर रीसेंड कर देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। ये सारे के सारे व्हाट्सएप में है, आपको देखिए ना व्हाट्सएप तो भेजा है, काल में है, काल भी गया। स्टार्ट करो। तो पुट सेलिंग के लिए क्या होता है? पुट सेलिंग के लिए क्या देखना चाहिए? सर देखिए पुट सेलिंग के लिए बेसिकली आप अगर कॉल अप ट्रेंड में आया यू कैन सेल योर पुट, मिलेगा प्रॉफिट। लेकिन सबसे पहले मुझे मैडम में एक ही कहना है, आप कोई भी चीज करोगे सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए कि आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, उसका रिटर्न क्या आ रहा है।
हाँ, पर मेरे पास यदि शेयर्स होगा तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन। सो पुट सेलिंग किया, नहीं देखिए पुट सेलिंग एंड कॉल सेलिंग साथ में किया। नहीं, अगर आपके पास कोई शेयर्स है और उसको आपको डिसीजन लेना है, तो देखिए आपको सिंपल है, आप 52 का सुपर ट्रेंड लगा दीजिए चार्ट में, जब भी इसमें सेल आएगा आप उस स्टॉक को सेल कर दीजिए फ्यूचर में। Sir, Mr. Pete, you know, this, whatever you have already shortlisted based on momentum, that is the call generated. Yeah. Okay. If you come to that sheet, call generated, ACC is showing huge momentum number. ACC, if you look at, it is showing that the ABFRL also. I find that is the highest momentum number, Allcorp also, 63. So that means I should focus on those. See, there are so many scripts call generated also. If you see call generated, you know, every day some 1 dozen scripts are getting generated. Okay. Yeah. For a small trader, I cannot focus on so much. So out of that, I will select the scripts which have a high number. No, why should you select a number? Because if the high number is there, the momentum has already completed. No. Oh. If you see ACC from 2362 it went to 2567. Now why should you enter that script now? Oh, I see. So in the call generated, how do I prioritize the script? You have to see the charts, sir. You have to see the charts first. Okay. I am only filtering the stocks for you. Okay. Okay. 0 to 1 instead वाले of जो है saying ना, those are 300 स्टॉक देखने की जगह पे आपको 6 स्टॉक देखना है, कौन सा आसान है सर? Sir, one question, when we are trying to decide for Monday, should we look at the call generated file and wherever we see 0 as the percentage return? Is that one day, sir, this is not advisable, sir. Because in the first day itself, you can get momentum. It's not for sure. You may get the momentum after the second day or third day also. No, I'm saying next trading day when we are planning end of the day, we need to look at which worksheet. Call That's why you should. Yeah, call generated worksheet is fine. See, for tomorrow, there are 7 stocks: Apollo Tyre, Acer Motor, IEX, Indotel, Voltas, Lupin, and NCC. Okay. In these stocks, you can select any one or any two. Any two. And then then I have to see the chart. is what we need to keep in our watch list. Yeah. Whether super trend may buy high, then only I will go, or how is it? Yeah, whichever indicator your favorite indicator you can use, which correlates that thing. Okay. So can I go to the second sheet, sir? Yeah, because yeah. I'll be taking some time. I don't want to take the time from Mr. For his presentation. Mohit, yeah. Mohit. Okay, sir, this is a support and resistance which I use. This data is based on the yearly data. So this is to be used for positional traders only. Positional support and resistance is to be used only for those people who have a target of 6 to 1 year, not for small intraday people. For small intraday people, you can use intraday support resistance, wherein your targets are very low, clear, and you can enter and exit at a very easy level. Now, this sheet being a bit complicated, I have filtered bullish stock separately and bearish stock separately. So people can identify that stocks which are bullish and see what are the next resistance level. Similarly, they can identify the bearish stocks and where is the next support level. So this can be used to book your profits. Whenever there is a momentum and whenever you get a decent profit, you can get out of it. So this can be used for this. And suppose if people are interested in breakout of daily volume, then there is a separate sheet where the volume is, there is a breakout in the volume on the 20-day average volume. So you can select those stocks for trading. Here you can expect a very good momentum. तो इसमें जो भी स्क्रिप्ट आएगा सवेरे से इसमें रिफ्रेश होएगा, नए स्क्रिप्ट आएंगे. अर्ली मॉर्निंग में ये ब्रेकआउट इन डेली वॉल्यूम विल बी ब्लैंक. उसके बाद एक एक स्क्रिप्ट करके आएगा. जो भी 200% के ऊपर है वही आएगा. लाइव, ये आप लाइव डेटा के ऊपर है? ये लाइव डाटा पे ऊपर है.
अच्छा, इज इट बेस्ड ऑन द पाइवेट और नहीं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर है, ऊपर लिखा हुआ है ना एज पर स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, दिस इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये चीज आपका पेंडुलम थियरी में भी काम आएगा। कैसे, थोड़ा बताइए। पेंडुलम में अगर आपका S4 पे आया है तो वहां से वापस ये ऊपर आने का चांसेस है, R4 पे गया है वहां से नीचे आने का चांसेस है। बट R4 तो आएगा ही नहीं ना, R4 तो बहुत दूर है। कैसे सर R4 R4 अचीव होते हैं? देखिए आप, चारों अच्छा। अचीव हो गया है, कलर हुआ मतलब अचीव हो गया है। इसमें कलर जो हो रहे हैं वो अचीव हो रहे हैं। बट ये डिफरेंट कलर का क्या मतलब है? डिफरेंट कलर्स एक एक लेवल क्रॉस किया है, मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर डिफरेंट यूज करना पड़ेगा ना सर। ओहो, अच्छा, तो यू मीन टू से ग्रीन आ गया तो उसका मतलब उसने वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया उस दिन। चौथा लेवल पे आ गया वो। ओह हाँ, बजाज ऑटो is currently at S4 और HDFC लाइफ भी देखो ना, HDFC लाइफ आपका 718 को क्रॉस कर लिया है। उसके बाद देखिए कितना आया, 2294 का क्लोज पे आया सर। हाँ, 2350 का हाई मारा लेकिन 2294 का क्लोज मारा। ओके ओके। तो अगर आपको वॉल्यूम ऊपर गया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जिसमें, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो R4 के ऊपर जाएगा या S4 के नीचे आएगा, बिकॉज इसमें वॉल्यूम बहुत ब्रेकआउट हो रहा है। अब तो जबरदस्त शीट बनाते हैं भाई। इसमें जो R4 है वॉल्यूम ब्रेकआउट में आपको R4 पे पोजीशन नहीं लेना है सेल का, क्योंकि वो ऊपर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी चीज कलर नहीं हुआ है, सपोर्ट पे कोई आया नहीं है, तो ये R4 के ऊपर भी जाएगा। R4 के ऊपर ज्यादा गया तो आप उसको शॉर्ट कीजिए, आपको तुरंत उसी दिन कवर करने मिलेगा। बट इसमें देखा जाए बजाज ऑटो विच इज एट S4 नाउ and the volume is very very high, that means it will further go down. नहीं सर, ऊपर जाके नीचे आया ना सर, 50 पे हाई मार के 2294 पे आ गया ना सर। नहीं, बजाज ऑटो नीचे अभी देखिए, ये कल के लिए सिर्फ है ना सर, फ्राइडे का दिन का है, दूसरे दिन अभी मंडे का डाटा दूसरा आएगा। नहीं वो दैट इज फाइन, बट हम लोग देख रहे हैं कि वो S1 से S2 S3 S4 तक आ गया और S4 में जब बड़ा वॉल्यूम है, दैट मींस मोर पीपल आर सेलिंग एट लोअर प्राइस, दैट मींस इट शोस इट्स लॉट ऑफ वीकनेस है। लेकिन देखिए वापस बाउंस बैक करके ऊपर आया ना 40 तक, 25 रुपया मिला ना आपको। व्हाट इज द मोमेंटम फॉर बजाज ऑटो? मोमेंटम नहीं सर, इसके अंदर मोमेंटम नहीं है सर, उसको आपको वो शीट में देखना पड़ेगा। सब एक शीट में नहीं आ सकता है। You can answer Mr. Kiran question that from the momentum number for Bajaj Auto. Sir, that is what it will be negative. I don't have to see it. It will be negative. Market नीचे जा रहा है, it will be negative, sir. More and more negative. So that is it is more and more negative. S5, S6, S7. It is ready to be sold. सर आपका एक देखना चाहिए, देखिए ये R1 तक आया, R2 तक नहीं गया, R1 से ही नीचे जाने लगा। तभी आपको पता चलेगा कि इसमें नेगेटिविटी आ रहा है। आप R1 के बाद में S1 पे आया, आप सेल कर दो, छोटा स्टॉप लॉस लगा दो, आपको टारगेट मिल जाएगा। It is trading above S4. कौन सा? It has come down to S4 levels and then bounce back, sir. Okay. S4 अचीव करके it is closed at 3640, 15 rupees more. तो आपके छोटे टारगेट्स हैं तो आप इंट्राडे में निकल सकते हो। राइट। अब इसमें दूसरा चीज एक है कि देखिए इंडिया विक्स का भी इसमें डाटा आता है कि आपको निफ्टी किधर तक जाएगा। इसमें इंडिया विक्स का वैल्यू अपडेट होते ही इसका नेक्स्ट डे का डाटा मिल जाएगा कि इसका रेंज क्या रहेगा निफ्टी का, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली डाटा। निफ्टी और बैंक निफ्टी कहां तक जा सकता है, ये इंडिया विक्स जैसे ही अपडेट होगा उसमें आपका वैल्यूज चेंज हो जाएगा दूसरे दिन के लिए। दिस इज बेस्ड ऑन इंडिया विक्स कैलकुलेशन। हाउ डू वी यूज दिस इंफॉर्मेशन? इंडिया विक्स का आप जो बता रहे हैं, ये इंडिया विक्स का अपडेशन अपने आप होता है, कोई बंदा करता है तो अपने आप ये वैल्यू चेंज होता है। ओके। और किरण सर, इसमें क्या रहता है कि जैसे जैसे इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग रेंज चेंज होती है, तो जो लोग स्ट्रैंगल पोजीशन लेते हैं वो या तो इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, लाइक रोल डाउन या रोल अप करते हैं, या फ्रेश ट्रायंगल जिन्होंने क्रिएट करना होता है तो विक्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते रहते हैं और फ्रेश पोजीशन उसके अकॉर्डिंग लेते हैं।
अच्छा ठीक। इसमें सर काफी शीट्स हैं, आपको ये मेन डाटा को नहीं देखना है, जिसको पोजिशनल करना है वो पोजिशनल देख सकता है। दूसरा चीज, अगर पुट बाइंग जहां पे लिख के आवे पोजिशनल में, अभी यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन जो भी पुट बाइंग लिख के आए ना, वहां पे आप समझ सकते हैं मार्केट नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कैनरा बैंक 246 का हाई मारा था। हेलो, कैनरा बैंक 246 का हाई मारा था, अभी 230 है। 230 is एलटीवी ऑफ कैनरा बैंक। ओके, तो जहां पे भी पुट बाइंग जहां पे लिख के आएगा ना, वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट नीचे आएगा। So now the comment will come, put buying. Yes, or not now. If it crosses S4, R4. R4, अच्छा. So it has potential to cross R4. It has crossed and it is coming down now, sir. Okay. अभी यहाँ पे देखिए, जो भी R4 नजदीक आ रहा है, वहां पे कलर होके आएगा आपको कि ये R4 के नजदीक आया है। ओके। ये अभी फॉर एग्जांपल चोला फाइनेंस, ये जैसे ही 700 पे जाएगा, यहाँ पे पुट बाइंग लिख के आएगा। ओके। Can you show LTI? LTI is it second R2 levels है। अच्छा। ये 8600 तक जा सकता है। ओके, so high। ये पोजिशनल है सर, ईयरली का है ना, ईयरली डाटा के बेस पे है। अरे भावना, एक्सक्यूज मी, पुट बाइंग में कलर है ब्लैक, वो रीडेबल नहीं है। आएगा सर, पुट बाइंग लिखेगा तो वो आएगा कलर। नहीं, वो अभी रीडेबल नहीं है सर। रीडेबल नहीं है क्योंकि कोई पुट बाइंग के लिए नहीं है सर। जैसे ही पुट बाइंग रीडेबल आएगा, वहां पे आएगा पीला कलर में। ये आपने बोला ना चोला फाइनेंस में आया नहीं है सर, आएगा बोल रहा हूँ ना, 700 के ऊपर आएगा ना सर। 665 का मार्केट चल रहा है ना सर, उसके ऊपर तो जाने दीजिए। अच्छा, ये जो पुट बाइंग है सिमिलर कॉल बाइंग का आता है? नहीं, क्योंकि कोई भी चीज R4 के ऊपर जाता है तो बहुत जल्दी गिरता है, लेकिन जो मार्केट नीचे गिरा हुआ है वो जल्दी उठता नहीं है, वो कंसोलिडेट करता है नीचे पे। तो कॉल बाइंग करके उसमें मतलब नहीं रहता है। एक्चुअली पीट सर, दिस एयरटेल के बारे में आप भी बोला, दिव्या रंजन इज वेरी बुलिश, तो मोमेंटम में नहीं आएगा। Which one? एयरटेल, भारती एयरटेल। No, it can go to 815 or 893. The values are here, no sir. Okay, but मोमेंटम स्टॉक में नहीं आया। मोमेंटम आ चुका है ना सर उसका। आप जो चीज आ गया उसको कैसे लिस्ट में लाऊं मैं? प्रीवियस डे का कैसे लाऊंगा बताइए मेरे को। 8.06 है, कैसे आएगा? अच्छा, so that means before 11th you started this on 11th, you said 11th November. So it has come before that. Yeah. Oh, I see. Okay. Oh. From 703 it was giving momentum, sir. Oh, अच्छा अच्छा। अब 741 40 रुपए तो आ चुका है उसके अंदर। Oh, we have lost so much. तो ये देखिए, जब भी एक्सेल बनेगा उसके बाद ही मालूम पड़ेगा ना सर। Pete sir, some scripts are not appearing in your positional support and resistance sheet. Which one? Some scripts are not appearing. Dalmia Bharat, it is not appearing positional support and resistance sheet. Sir, I have selected only Nifty 200 stocks, sir. I have not selected all the stocks. Nifty 200, okay. Yeah. Sir, IEX is momentum also in the sheet also. And which one? S2 IEX is in the is in the momentum sheet also. Is also showing that the R2 has already come. Yeah. But sir, A2 you are saying because R2 already come, it is already over that is why it is not showing there. No, sir, it's not that way. IEX, the value, see, if you see the momentum list in IEX, what is the value? It is just 0.76, sir. Hello? Yeah. Got it, sir. Got it. Basically, IEX is a good candidate. It has come up from negative to positive, and it is just Bharti Airtel is already at 8. Now, if you say I would want buy Bharti Airtel in the
script list, how is it possible, sir? Yes. Our Right, sir, I condition got is that it should be near to 0. Agree. Fine. सर ये Thank you, sir. मोमेंटम जो आपने जो प्रेजेंट प्रीवियस डे करंट वैल्यू जो डाले हैं मोमेंटम इज बेस्ड ऑन द इंडिकेटर। नहीं सर, एक कोई कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे है। मेरा मेन शीट में एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसके हिसाब से ये वैल्यू डिराइव होता है सर। ठीक है, मैं 45 दिन का डाटा लेता हूँ। जैसे मैं ठीक है, तो मुझे लगा कि ये बेस्ड ऑन इंडिकेटर से जो मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं RSI वगैरह। नहीं सर, ये कोई कैलकुलेशंस किया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। मैं जनरली सर go up to 100. It can go up to 100. Which no 50, 60, 70. 60, 70 only. So I will avoid whichever has gone so high. See, you have to select those stops which are near 0, sir. Near 0, okay. If it has already gone to 20, there is no sense in it. हाँ सर, अब मैं एक मिनट में समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रिप्ट ने सर ने खोल रखे हैं, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि मोमेंटम स्टॉक कौन सा है, ठीक है। और वहां पे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पार्ट है वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है, जो रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह वो डे टू डे बेसिस पे चेंज होता है। बट यहाँ पे जो है वो फ्रेश मोमेंटम शुरू होता है। लेट्स से अगर 0 से ऊपर होता है, यहाँ पे देखिए मोमेंटम ICICI बैंक 4.70 आ चुका है, तो वो 4.70 से 20 तक भी जा सकता है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पार्ट जाओगे वो डे टू डे बेस चेंज होगा, ठीक है। तो वो पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। जैसे सर ने कहा कि 0 से ऊपर है, तो आपको वो देखना है कि अच्छा ये अभी मोमेंटम में आ रहा है। तो अगर आप डे टू डे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हो, तो अगर रेजिस्टेंस के 4 के आसपास आ गया तो ठीक है, तो उस दिन का छोड़ दो, अगले दिन देख लीजिए। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड करो तो उस बेसिस पे ट्रेड करना है, ठीक है ना। कोठारी जी, if there is no question, let Mayur he continue his session then. और किसी का क्वेश्चन है? 11:20 सर, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? ये हेलो ये सर 3 ग्रुप हैं हमारे, तो ये वाली जो स्टेटमेंट आओगी कौन से वाले ग्रुप में होगी? FF वाले 1 में ना? FF1 में सब में रहेगा, सब में रहेगा। ओके। चामरक जी, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली जो फाइल है ये भी शेयर करा है क्या? हाँ, तो सबसे पहले ही शेयर किया हुआ है सर सबके पास। ओके सर, वेडनेसडे रखा था, वेडनेसडे हुआ है लास्ट। ओके, थैंक यू, आई विल चेक। या एक बार फिर से शेयर कर देना ताम्रम जी सारे ग्रुप में। प्रॉब्लम क्या है सर, शेयर करने से मैं फिर उसको फिर जैसे अभी इसको किया है ना वैसे मैं करूंगा, इसको पब्लिश कर दूंगा मैं। क्या शेयर करने से क्या होता है, वो चीज हर आदमी रिक्वेस्ट डालता है, मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ता है सर। और पब्लिश करता हूं तो सब देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। आई थिंक पब्लिश इज मच बेटर देन। ठीक है, फाइन। यस, पब्लिश कर दूंगा उसको। थैंक यू सर। So, PG, one small question, that momentum has become above 0 in case of sale, but it is slightly below SMA 20. Such stocks also we can choose? It will be slightly risky, sir. Risky, yes, okay. Because it should be above SMA. Oh, I see, okay. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी मैंने शेयर कर दिया है अभी ग्रुप में। पब्लिश हुआ है तो कोई भी देख सकता है। तो आप ये डेली बेसिस पर शेयर करेंगे लिंक? नहीं, एक ही बार शेयर करूंगा, उसको आपको सेव करके रखना है, उसका जो लिंक है। ओके, डेस्कटॉप पे डाल सकते हो, डेली अपडेट होता रहेगा वो? डेस्कटॉप पे नहीं चलेगा आपको, ये बेसिकली मेरे को लग रहा है कि गूगल पे ही आपको कहीं ना कहीं सेव करना पड़ेगा। नहीं, उसको लिंक में जाके सेव कर लो ना, जो आपका टूल बार है, टूल बार में जाके सेव कर लो, उसको क्लिक करो, आपका खुलेगा तुरंत। या इसको फेवरेट में डाल सकते हैं? हाँ, वो फेवरेट टूल बार में करके फेवरेट करके डाल दो, एंड देन यू कैन ओपन इमीडिएटली। ठीक। But actually that link saving I was finding it difficult. Anyway, I have from the WhatsApp I could not save. अभी अगर आपको देखेंगे तो ये गूगल मैंने स्प्रेड जो किया, ये यहाँ पे मैं ओपन कर सकता हूँ सब शीट्स। Oh, I see. Okay. Anyone can use it. Those who are having this Excel link can use it. Now it is good. When you had sent it separately, momentum, I was finding it difficult. Yeah, now it is good. Yeah.
पर सर ये व्हाट्सएप में नहीं आया है अभी तक, ये फाइनेंशियल फ्रीडम वाले में। सर मैंने ऐड किया है एक ग्रुप में सर, अभी मैं स्क्रीन पे हूँ तो कैसे उसको ऐड करूँ सब में? एक आगे दिखा तो मैंने उसको ऐड कर दिया है। ओके ठीक है, ऐड कर दूंगा मैं तीनों में। ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो थैंक यू पीताम्बरम जी, एक्सीलेंट आपके ये थे प्रेजेंटेशंस, और आपके ये एक्सेल फाइल तो रियल ग्रेट है। नाउ आई एम वर्किंग ऑन ईएमए आल्सो, क्योंकि पब्लिक को ईएमए चाहिए था, ईएमए पे भी काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीक तक ईएमए भी रेडी हो जाएगा। ईएमए और एसएमए आल्सो, एसएमए 5, एसएमए 20 एंड एसएमए 50 पे भी काम कर सकते हैं। नहीं, ईएमए नहीं आएगा बेसिकली, एक्सेल में ईएमए कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसके जगह पे मैं एसएमए करूंगा। एसएमए से एक आइडिया मिलेगा फिल्ट्रेशन का, उसके बाद आप ईएमए चेक कर लीजिए अपने यहाँ पे। ओके, ईएमए और एसएमए में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। पीताम्बरम साहब, एक छोटा क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए। कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ एसएमए, बीएमए एंड ईएमए? उसको कब यूज करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और कब उसको देखना है, और किस किस टाइम फ्रेम में देखना है? सर आप कोई भी टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो उसके वैल्यूज डिफरेंट होंगे। अगर आप समझो डेली के चार्ट में यूज करेंगे तो 20 कैंडल्स को देख रहा है वो, ठीक है, 20 कैंडल्स को। अगर आपने 1 घंटे में देखेंगे तो 21 आवर कैंडल को देख रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज चेंज होते रहेगा। आपको आपका टाइम फ्रेम क्या है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है सर, लेकिन एसएमए, बीएमए और ईएमए ये तीन है, ये तीन बेसिकली इसका यूजेज कब जरूरत पड़ता है इसका? सिंपल मूविंग एवरेज जो है आप एक्सेल में एक सेल में कैलकुलेट कर सकते हो। ईएमए और बीएमए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो वॉल्यूम को भी ले रहा है और एक आपका एक्सपोनेंशियल ले रहा है, 14 डेज का डाटा, 20 डेज का डाटा लेके उसको कर रहा है। तो वो चीज आप एक्सेल में कर नहीं सकते हो, एक सेल के अंदर आपको मल्टीपल सेल्स लगते हैं। तो अगर आप 300 स्टॉक करना चाहेंगे तो आपका एक्सेल फाइल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप चार्ट्स में लगा सकते हो वो चीज को। लेकिन इसका यूसेज कब करना है सर? बीएमए को कब देखना है, एसएमए को कब देखना है, और आपका स्ट्रैटेजी क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप क्या स्ट्रैटेजी यूज करना चाह रहे हो? ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम गाइड कर सकते हैं ना, आप क्या कब देखोगे आप। सपोज कर लीजिए सर हमें लॉन्ग पोजीशन पे जाना है, ठीक है, तो हम किसको देखेंगे? लॉन्ग पोजीशन में आप एक्सपोनेंशियल को भी देख सकते हो, एसएमए को भी देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, दोनों देगा आपको रिजल्ट। ठीक है, दोनों में 5 पॉइंट का वेरिएशन आएगा, बस 5-6 पॉइंट का इधर उधर। अच्छा, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है ना? नहीं आता है। ठीक है सर। दूसरा सर, जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो आपने लिंक दिया हुआ है, हाँ, ये लिंक सर अभी ना तो कोठारी साहब इसको टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाल दीजिए। हाँ, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी डाल देंगे, चलो ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पे सर मैं अभी देख रहा था तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से टेलीग्राम में अपने फर्स्ट बनाया था तब से मैं ज्वाइन किया हूँ, तो वहाँ बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो वहाँ से मोस्टली लोग ले सकते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी ग्रुप के लोग हैं सारे वहाँ टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। नहीं, टेलीग्राम में इतने लोग नहीं है, टेलीग्राम में काफी कम लोग हैं हमारे, टेलीग्राम में बाहर के लोग ज्यादा है। अच्छा, एक्सपर्ट ग्रुप में है वो जो रेगुलर लोग हैं, जी, रेगुलर जो है ना वो सब एक्सपर्ट वाले ग्रुप में है। तो एक्सपर्ट का मैंने 3 ग्रुप बनाया है, अभी 4 ग्रुप है टोटल एक्सपर्ट वाले, जी। तो आप एक्सपर्ट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक्सपर्ट में हूँ सर मैं ऑलरेडी, फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपर्ट जो है ना। हाँ, तो बस फिर वहाँ आपको लिंक मिलेंगे ना सारे। एक्सपर्ट 1 में नहीं है सर अभी तक लिंक। ठीक है, नहीं, एक्सपर्ट 3 में भेजूंगा सर, एक्सपर्ट 3 में मैं हूँ सर। भेज देंगे, डोंट वरी। ठीक है सर। So sir, thank you sir. Now request Mr. Mohit to take over. Yeah. Acha, Pete ji, I must definitely mention that it was one of the, another excellent session, and going forward, right from leap of the days I am watching, you are enhancing the technical skills of the members with, improvised Google Sheets